کے بعد میں نے جیل بھی بھگتی ہے. میرے اپنے لوگوں نے, میرے اپنے جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے, انہوں نے مجھے دہشت گرد بنا کے جیل میں ڈالا. مجھے تھانہ صد کا بعد مجھے یعنی افزے بھیجا میں رکھا 8.5 گھنٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ناظرین عزت خان اور میں سوکی ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں. آج میرا ایک بہت خوبصورت چہرہ, ایک بہت بڑا آدمی, میرے لیے خوش قسمتی ہے. آج میرا پہلا انٹرویو ہے اس کا ساتھ اشفاق عباسی صاحب. اشفاق عباسی صاحب کے میں تھوڑا مختصر سا تعارف کروں. یہ سابقہ زندگی اس نے مسلم لیگ نون میں گزارے. ادو پر بڑا ٹھیک ٹھاک رہا, ادھر صدر, نائب صدر, سیکٹری, بارڈ کمیٹی ڈالا. آج اس نے حال ہی میں چند دن ہو گیا اس نے جناب مسلم لیگ کو چھوڑ کے اور پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کیا. میں اپنے شو میں اشفاق عباسی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کوئی چند سوالات آپ سے کروں گا اپنے ناظرین کے لیے. لیکن آپ مجھے سیدھا سیدھا بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ نے کیا سوچ سمجھ کر کے جو مسلم لیگ میں گزارا اور پھر جو آپ نے پیپل پارٹی جوائن کیا, تو مسلم لیگ کا آپ کو کوئی نظر آ رہا تھا کہ اس کا مستقبل جو ہے نا وہ تاریکی کی طرف جا رہے, یا مطلب ہے آپ کو پیپل پارٹی نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی عروج پائے گا؟ تو آپ کیا سوچ کے آپ نے پارٹی چینج کیا؟ آپ کا دل کا آواز کیا ہے؟ علن کے میرے حساب میں تو یہ دونوں پارٹی جو ہے نا یہ زوال کے طرف جا رہے, کیونکہ لوگ مانے نہ مانے, جیل میں ہو عوام میں ہو, لیکن حقیقت ہوتا ہے. اب جس طرح تیسرا پارٹی آ گیا اور اس کا ایک ہوا اور ایک رخ چلے, اور وہ کہتے ہیں نا جس چیز کو, جس اسپرنگ کو جتنا مزید دباؤ گے اتنا اوپر وہ جائے گا. مزید اس کے پارٹی میں جان پڑتے اور اصل لوگ ایک طرف ہوتے ہیں اور جو نقل لوگ تھے وہ دوسرا طرف ہوتے. تو صورتحال, کیونکہ ہم نے ملکی لیول پر بات کرنا ہے, میں بھی سچا کر آدمی ہوں, تو میرا آپ سے سوال ہے, آپ مہربانی کریں واضح کے بغیر آپ مجھے ذرا آرام سے تفصیل سے بتا دیں. بہت مہربانی عزت اللہ صاحب, آپ نے مجھے اپنے سوکی ٹی وی پہ انوائٹ کیا, بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی میں کیوں گیا اور کیا مسئلہ تھا, دونوں زوال پذیر ہیں پارٹیاں, تو آپ نے یہ کیوں منتخب کیا؟ اصل میں میرا جو مسئلہ تھا مسلم لیگ نون میں, میں نے 35 سال گزارے ہیں وہاں, اور میں نے وہاں اچھے گزارے ہیں عزت کے ساتھ, اور میرا کوئی مسئلہ کسی کسی لیڈر کے ساتھ نہیں تھا, اور نہ میرا یہ تھا کہ مجھے کچھ مل نہیں رہا یا میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری جو مقامی قیادت ہے پنڈی کی, اس سے میرا اختلاف تھا. وہ چونکہ ورکروں کو روکتی تھی, ورکروں کو آگے نہیں لاتے تھے, وہ ان ورکروں کو آگے لاتے تھے جو انویسٹر ہیں, جو پالش اور مالش کرنے کے ماہر ہیں, اس قسم کے لوگوں کو نا وہ آگے لے کے آتے تھے. جو اصل ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے نظریاتی ہیں, لوگ جنہوں نے 20-30 سال لگائے, ان کو وہ سائڈ لائن کرتے تھے, دیوار سے لگاتے تھے. تو وہ میں نے جدوجہد کی کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے, لیکن نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے جیل بھی بھگتی ہے. میرے اپنے لوگوں نے, میرے اپنے جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے, انہوں نے مجھے دہشت گرد بنا کے جیل میں ڈالا. مجھے تھانہ صد کا بعد مجھے یعنی افزے بھیجا میں رکھا 8.5 گھنٹے احتجاج کرنے کا. ٹھیک ہے, بہت چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں, لیکن میں برداشت کرتا رہا, اور میں نے پارٹی اس وقت بھی نہیں چھوڑی. جب میں جیل گیا میں نے 2 مہینے دہشت گردی کا کیس بھگتا ہے. اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے نا, جب میں نے چھوڑی ہے کہ جب یہ لوگ گھر کے جو لوگ ہیں, جو گھر میں ان کے بیٹے بیٹیاں بھتیجے چاچے مامے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ لوگ عہدے دے رہے ہیں. اور جبکہ جو بیچارے دیرینہ لوگ ہیں, جنہوں نے 20-30 سال لگائے, اپنی عمریں لگائی ہیں نا, ان کو یہ عہدے نہیں دے رہے, ان کو یہ دیوار سے لگا رہے ہیں. تو ادھر سے میں مایوس ہوا کہ یہ تو بھائی آگے نہیں آنے دیتے. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے گھر میں بیٹھا ہے, جس کا کوئی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے, جس کا پارٹی میں خدمات نہیں ہے, اس بندے کو آپ ضلع کا صدر بنا دو, سوشل میڈیا کا صدر بنا دو, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے ورکر کے ساتھ, کارکن کے ساتھ زیادتی. کیوں بھائی؟ کارکن بیچارہ اپنا پوری عمر لگا دیتا ہے,
गली मोहल्ले की सियासत वो करता है, वोटें वो निकालता है, वोटें वो बनाता है, लोगों को वो निकालता है, इलेक्शन में भूखा प्यासा भागता है, तो वो उसको क्या मिलता है जी? वो इज्जत चाहता है, आप वो इज्जत भी नहीं देते। अच्छा, अगर किसी को इज्जतुल्लाह साहब, अगर किसी को एक ओहदा मिल जाएगा तो उसकी कोई तनख्वाह तो नहीं लग जाती, तनख्वाह तो पार्टियां नहीं देती ना, एक इज्जत होती है। तो वर्कर को अगर आप ओहदा देंगे, वो उसकी हौसला अफजाई होगी। कोई भी पार्टी हो, मैं कोई नून की सिर्फ बात नहीं कर रहा, सारी ऑल ओवर जो पार्टियां हैं ना, वो यही काम कर रही हैं। मेरा ही 35 साल का तजुर्बा हो चुका है इस काम में। जिस पार्टी को देखें वर्कर को इस्तेमाल करती है, और जब उसका काम का टाइम आता है तो वो दरवाजे बंद कर देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, उठाते ही नहीं हैं। वो बेचारे वर्कर गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं सिर्फ पार्टी के नाम पे। तो ये मसला है। मेरा दिल तो नहीं करते कि आपको रुको, आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन एक जहन मेरा सवाल आ गया। वो यही है, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत खूबसूरत, मैं मुकम्मल आपकी तारीफ करता हूँ। इसका वजह ये, मैंने भी इसी तरह पार्टियों में हमेशा वक्त गुजारे, लेकिन ये वाकई जेन्युइन वर्कर के साथ अभी जो बल्दियात का इंतखाबात था, तो इस रिश्तेदारियों की वजह से, इस लाकानूनियत की वजह से मैंने आज़ाद है, लेकिन वो मैं सही करता हूँ। लेकिन आपका ये क्या आपको पहला पता नहीं था कि ये तो कोई जमहूरी पार्टी नहीं है मुस्लिम लीग, ये तो खानदानी पार्टी है। ये तो हमेशा एक भाई वजीर आजम होगा, दूसरा जो है ना वो चीफ मिनिस्टर होगा, फिर जनाब बेटा भी होगा, फिर जनाब आगे। और हमारे, या तो हम पुख्तून हैं, हमें बुरा लगते, हमारे पुख्तून लोगों का एक रिवायत है कि हम बेटी का जब शादी कर देते तो हम कहते हैं बेटी अब तुम्हारा घर आबाद हो गया, अब तुम्हारा वो खानदान है, हमारा खानदान के साथ तुम बसत मेहमान आ सकते हो, अपना हिस्सा ले सकते हो, लेकिन हमारा घर के मालकन नहीं बन सकते। हालांकि मुस्लिम लीग नून में ऐसा नहीं है। वहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर भी मरियम नवाज, सीनियर नायब सदर भी मरियम नवाज, सारा पार्टी का जनाब करता दरता सब कुछ वही करते। तो आपको ये अभी पता लगे या पहला? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रावलपिंडी में जब तक, अव्वल तो मेरा दिल करता है कि जब तक शेख रशीद अहमद जिंदा है तो कुछ दूसरा पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, तो पीपल पार्टी तो इधर बहुत नीचे है, तो आपने उसका इंतखाब किया, इस पे ज़रा मुझे थोड़ा सा। तो पहला जो आपका सवाल है ना, जो एक फैमिली पार्टी है मुस्लिम लीग नून, यानी इस पाकिस्तान की जो सियासत है ना, वो एक शख्सियत के गिर्द घूमती है। किसी भी पार्टी में आप देख लें, किसी भी पार्टी में कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसमें फलाना भी आया तो फलाना भी आ जाए। एक ही बंदा होता है, उसके नाम पे वोट मिलता है। जैसे मुस्लिम लीग नून में ना नवाज शरीफ के नाम पे वोट दिया जाता है। आप शहबाज शरीफ को खड़ा कर देना, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा, लेकिन नवाज शरीफ को वोट मिलेगा, उसके नाम पे वोट मिलेगा। इसी तरह भुट्टो शहीद होते थे, भुट्टो जुल्फ़िकार उसके नाम पे लेते थे, फिर उसकी बेटी आई है, उसके नाम पे मिलते थे। अभी जब पीपल्स पार्टी में भी ग्रुप बंदियाँ आई हैं, ये मखदूम अमीन फ़हीम एक मुशर्रफ के दौर में उसको खड़ा करने की कोशिश की गई। अच्छा, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को पीपल्स पार्टी में था, वो अलहदा हुआ तो वो ख़त्म हो गया, सिफर हो गया। अब आप पुराने, आपको तो पता होगा गुलाम मुस्तफ़ा खैर की क्या हालत हुई, वो भी पीपल्स पार्टी से अलहदा हुआ, लेकिन वो छुट्टी हो गई उसकी। तो ये खान साहब, ये जो पार्टियां हैं ना, ये किसी के गिर्द घूमती हैं, एक बंदे के, उसके नाम पे वोट दिया। आप पीपल्स पार्टी देखें, आप नून देखें, आप पीटीआई देखें, आप वली खान की देखें, आप जमात इस्लामी को देख लें, ये मौदूदी के गुट। सॉरी, एक पार्टी आप बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि टाइम, किसी का टाइम बड़ा जालिम होता है, वक्त नहीं देते, तो मेरा दिल में बाकी पार्टियों का आपको मैं मानता हूँ कि विरासती पार्टी एक दूसरे को मिलते हैं, बल्कि हमारा इस मुल्क का जो कोई बहुत बड़ा ये जो पीर और दरगाह होते हैं, वो भी अपने बेटे के सिर पर पगड़ी रखना चाहते हैं। वो नहीं देखते कि मेरा जो वर्कर है वो बहुत है, लेकिन वाहिद जो बंदा है इमरान खान, उसके तारीख में उसका यही बड़ा मुसीबत है कि उसको जिस 4 बंदों ने जिस बंदे की सिफारिश की, ये बंदा कोई तगड़ा, उसने टिकट दे दिया, न उसका बेटा, न भाई, न समझी, न कोई रिश्तेदार, कोई खानदानी बंदों को नहीं दिया, उसको कम अज कम इस लैंड में शामिल मत करो। पहली बार आए, अच्छा किया, बुरा किया, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन 3 साल के लिए उसको मौका मिला। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक से ज्यादा दुश्मन एक बंदे का बन जाए ना, तो समझो इस बंदे में कोई क्वालिटी, कोई कमाल है। ये जो 13 पार्टी है ना, जब एक दूसरे की जान के दुश्मन था, सब ने हमारा गरीबों का खून पसीना निकाल के बार गोल मुल्कों में ले गया, लेकिन वापस आके नवाज शरीफ के नाम पर रूट नहीं मिलते। अभी मैं आपके साथ इत्तेफाक लिया, अभी उन्होंने कम अज कम
3-4 अरब रुपए लगाए, मैं दावा करता हूँ 3-4 अरब रुपए लगाए। हर बंदे ने अपना इज्जत के बचाने के लिए 50,000 पे बच किया। इस पे बारे में मुझे बताओ। और 5-5 हजार रुपए भी दिया, कुरमे भी खिलाए, वो भी खिलाया, पुलिस भी आए और जलसा फिर भी नाकाम रहा। ठीक है जी, नहीं नाकाम नहीं रहा। इस पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ बहस के जलसे बेहतरीन था। जिस तरह इमरान खान ने 2007 का किया है जलसा ना, तो देखिए ना, एक आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए, ज़र्फ़ होना चाहिए इंसान के अंदर। कि ये नहीं है कि मुखालफत दर मुखालफत। देखिए जो अच्छा काम करता है उसको कहें कि ये अच्छा काम है। अगर किसी ने जलसा किया है अच्छा, 2007 में उसने अच्छा किया था, मैं खुद नून में था, मैंने अच्छा जलसा हुआ, ठीक है। अभी जब इनका हुआ तो यानी तनकीद नहीं करनी चाहिए। देखिए जलसा मैं अपने तरफ से अर्ज नहीं करता हूँ। सुनो, मैं अभी जब घर से आ रहा था, मैं अभी बावजू हूँ, मैंने कोई 11 चैनलों पर देखे और सब लोगों ने चैनल के उन्होंने असलियत बताया। सुनो, फिर ये कैमरे में ये पहली बार देखे कि किसी सियासी जलसे से अगर आदमी बाहर निकलते तो पुलिस डंडे मार के अंदर ले आते। पुलिस का क्या काम है अंदर आना? देखिए ना, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, यार जलसों में होती हैं, ये पीटीआई के भी होती हैं, पीपी के भी। पीटीआई के लोग याद रखो, न कभी बिरयानी खिलाए तारीख में देखे, तो न बिरयानी खिलाए, न कुरमा खिलाए, न 5,000 रुपए दिया, न करे का बस दिया, और उसके साथ रेडी वाला ने रेडी उधर छोड़े, यही उसका जुर्म था। और जनाब बड़े ने बड़ा इधर छोड़े, अपने मदद आप दिया, इन्होंने इनको टास्क दिया गया टिकट तब मिलेगा जब जनाब 5,000 बंदे लेकर आए। और उसके बाद जनाब बात सुनो, 7,000 एजेंसियों के बंदे जो स्पेशल बन के वो निकाल के फिर आगे बढ़ के लोग तो आए थे, उन्होंने कहा हम लाहौर में हाजिरी दिया, जाके अपना बस में क्यों। भाई सब पार्टियां इसी तरह होती है खान जी। पीछे कुर्सी आधा जलता, कुर्सी खाली था, मैंने संविधान से देखे ना, पीछे कुर्सियां थी ना, आगे की बात है। पीछे अभी जैसे यहाँ 2 कुर्सियां हमारी वो खाली पड़ी हैं। मुझे इमरान खान का तारीख में बता दो कि कभी उसका कुर्सी भी खाली हुआ, जब तक वो रात को 2-2 बजे। देखो देखो, लोग तो मौलाना तारिक जमील से भी इख्तिलाफ करते हैं, मैं लोगों को मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब उसके तकरीर शुरू थे तो फिर हर मुसलमान का दिल करते हैं। देखिए ना, आपकी हमदर्दियाँ जो है ना, अगर इमरान खान के साथ है, अच्छा चलो मुझे आप गैर जानिबदार जो है ना बन के बात अच्छा, मैं गैर जानिबदार करता हूं। यानी आपकी जो लहजे से पता ये चलता है कि आप मतलब एक पीटीआई को आप लाइक करते हैं, पीटीआई से नो सॉरी, ये नहीं, मैं हकीकत बयान करूंगा। सुनो, ये जो है ना, ये बिका हुआ, हम बिका हुआ चैनल नहीं है। सुनो, मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये हकीकत फर्क सिर्फ इतना है, इमरान खान का जुर्म ये मदीने के बाद किया, गरीब के बाद किया। सुनो मेरा बात सुनो। आप एंकर हैं कि आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं? आप मुझे सवाल करें ना, मैं प्यार। अब मदीने का रियासत कैसे बनेगा? अब अजान होगा, हम इधर से 200 बैठे ना, हम जमात जाके नमाज पढ़े, हम करप्शन छोड़ दे, हम बेईमानी छोड़ दे, हम झूठ छोड़ दे। अब सुनो, अब हम इमरान खान, चलो मैं एंकर बन जाता हूँ, मैं आपसे सवाल करता। अच्छा एक और बात, ये तो आया था मेरा भाई मियां साहब, चलो बड़ा लीडर है, लोगों को बड़ा तवक्को है, हम उसको छोटा नहीं करता, हमारा मुझसे छोटा नहीं बनते, लेकिन वहां से वो जिस दबदबे और जिस दंदने और जिस जज्बात से 4 साल जलावतनी उसने गुजार दिया। चलो मैं दवाई नहीं कहता हूँ, जलावतनी कह रहा हूँ, हमारा गम और दर्द में वो 4 साल बाहर था। और वो जब आ रहा था वो कुछ 6 नाम ले रहा था, आप पसंद करेंगे कि उस बयानी से वो क्यों वापस हो गया? उसने कहा जब तक 4 चीफ जस्टिस को और 2 जर्नलों को टिकाने नहीं लगाऊंगा तो ये मुल्क नहीं समझेगा। वो बयान है, उसने क्यों छोड़ दिया, मुझे ये बता। ऐसे आप सवाल करें ना, 5 मिनट तो आपने अपनी, चलो अब इसका बोले, वो सौदाबाजी हो गया या डर गया? सवाल करें नहीं, अगर वो डरने वाला होता ना, पहली बात है नवाज शरीफ, वो कभी भी सजा सुन के अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान ना आता। ये वाहिद लीडर है जो सजा सुन के आया यहाँ, जब आया था, ठीक है, सजा सुन के सीधा जेल गया, पहली बात। दूसरी बात, ये डरने वाली में आसान नहीं, क्या सजा हफ्ता था वो भाई, तो सजा सुनने के लिए बाहर से आया ना, यहाँ से तो लोग भागते हैं, जलसे के लिए आया। अभी नहीं, पहले जब आया था, अच्छा, पहले जब सजा सुनने के लिए आया ना तो सीधा जेल गया था एयरपोर्ट से। हालांकि उसकी बीवी बीमार थी, बिस्तर मर्ग पे पड़ी थी। ऐसे कोई भी नहीं, कोई दुनिया का कोई लीडर मुझे बता दें कि कोई आया हो, नहीं आया। वो यहाँ से भागते हैं। मुशर्रफ नहीं यहाँ केस से भाग गया था दुबई। बात यह है कि डरने वाली बात नहीं है। बात यह है नवाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की है कि मिलजुल के चलें, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। हम एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, काम नहीं होगा,
काम नहीं होगा, क्या होगा, मुल्क की तबाही होती है, टांगे खींचने। उन्होंने उनकी आप तकरीर सुने, तकरीर में कितनी बेहतरीन, ना उसने कोई किसी को गलत बात की, कोई घटिया बात नहीं की, कोई पुकारा ओए ओए नहीं किया, कोई उसने कोई गलीज बात नहीं की, कोई किसी को उसने ये नहीं किया कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो, उसने एक असली नस्ली और जिस तरह खानदानी लोग होते हैं इस तरह उसने तकरीर की है। अच्छा, और उस तकरीर बस पे अभी लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार वो किया मुझे- कि यार बहुत एक मैच्योर। मुझे इशारा मिल रहा है, जी जी मुझे इशारा मिल रहा है कि टाइम का बड़ा कमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।